Dear student, in this video we will discuss on some other physical quantities. In our first video we have explained you length, mass, time, acceleration. These units have been already explained. Now we will explain now force. After acceleration there is another quantity, that is force. So first, what is force? What is the formula for force in physics and what are its unit? Force, suppose that there is a rolling ball, then how you can stop it? Or if the ball is in stationary condition, how you can make it rolled? कोई बाल यदि लुढ़कती है तो उसे आप कैसे रोकेंगे, या कोई बाल रेस्ट कंडीशन में है तो उसे कैसे लुढ़कने लायक बनाएंगे? बोथ दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल. दोनों कंडीशन में यदि बाल को रोकना है तो भी एक मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको रोल करना है तो भी एक फोर्स लगेगा. सो फोर्स कैन बी नाइदर इट कैन बी एक्सपीरियंस नॉर इट कैन बी सीन. फोर्स को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते. ओनली इट्स इफ़ेक्ट कैन बी सीन. उसके इफ़ेक्ट क्या हुए ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी पर. मैंने आपको बताया था बॉडी वर्ड फिजिक्स में क्या मीनिंग है उसका, ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसके ऊपर केवल उसका इफ़ेक्ट देख सकते हो आप. सो द फार्मूला फॉर फोर्स इज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. Mass into acceleration. Now there are three measuring system: CGS system, FPS system, and MKS system. Now we will measure the force in these three measuring system. So CGS system में, if CGS system, what is the unit of mass? CGS system में mass का, this is length, mass and time, LMT. In CGS system the unit of mass is gram. So this is gram and acceleration is centimeter per second square. So if we expand the formula, then we get gram into centimeter per second square. Now what is the unit of force in CGS system? It is Dian, and this is poundal in FPS and Newton in MKS or SI unit. Now how we can define one dyne? By taking help from this formula we can define one dyne. You have to take mass 1 unit, means 1 gram, and acceleration 1 unit, means 1 centimeter per second square. Both quantities, mass and acceleration, have been taken in 1 unit. So 1 dyne is the force. 1 dyne force किसे कहेंगे? 1 dyne is the force when applied on an object of 1 gram produce an acceleration of 1 centimeter per second square. एक डायन फोर्स वो फोर्स होगा जो 1 ग्राम की किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर यदि लगा दें तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. Second unit in FPS system is poundal. So 1 poundal, now we will define 1 poundal. 1 पाउंडल के लिए मास और एक्सेलरेशन की यूनिट, वी विल टेक दिस 2 यूनिट इन FPS सिस्टम. मास और एक्सेलरेशन की यूनिट को FPS सिस्टम में ले लीजिए आप. 1 पाउंड
1 pound and 1 feet per second square. This is unit of mass and this is unit of acceleration in FPS system. So 1 pound is the force when applied on an object of 1 pound produce an acceleration of 1 feet per second square. 1 पाउंडल वो फोर्स होता है जो 1 पाउंड की ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद उसमें 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके. सो दिस इज 1 पाउंडल. नाउ डायन इज डिफाइंड, पाउंडल इज डिफाइंड. MKS और SI यूनिट इज ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की SI या MKS यूनिट क्या है? न्यूटन. If we want to define 1 Newton, 1 Newton, then you have to take again F is equal to mass into acceleration. मास की यूनिट लेंगे आप MKS सिस्टम में, इसके बाद एक्सेलरेशन की यूनिट लेंगे MKS सिस्टम में. हमने आपको एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में LMT और A, L MT और एक्सेलरेशन तीनों की यूनिट उस चार्ट में है. आप वो टेबल अपने पास नोट कर लीजिए. मास, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, 1 किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 ग्राम एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हियर F इज 1 न्यूटन. So 1 Newton is the force when applied on an object of 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square. फार्मूले में जो क्वांटिटी है मास और एक्सेलरेशन दोनों को ले लीजिए आप, आगे डिफाइन हो जाएगा यूनिट. कभी भी 1 न्यूटन बल या फोर्स उसे कहेंगे जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके. ऐसा फोर्स 1 न्यूटन कहलाएगा. सो दीज आर यूनिट ऑफ फोर्सेस. फोर्स इन 3 मेजरिंग सिस्टम, CGS डायन होता है, FPS पाउंडल एंड MKS न्यूटन. नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क. नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क. In the language of physics, when we can say that work is done, फिजिक्स की भाषा में कब कहेंगे हम कि वर्क या कोई भी काम हो गया? When a force is applied on any object and it is displaced in the direction of applied force, then we can say that work is done in the language of physics. फिजिक्स की भाषा में काम हो गया तब मानेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करने के बाद वो फोर्स अप्लाई किए गए फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी, वहाँ पर हम कहेंगे वर्क इज़ डन, काम कर लिया गया. और यदि ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी तो वर्क इज़ पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी तो वर्क इज़ नेगेटिव. तो वर्क इज़ डन, व्हेन वी कैन से दैट वर्क इज़ डन, काम हो गया जब अप्लाई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स की अप्लाई किए गए फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो जाएगी. वो अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट मीन्स हटना, वो अपनी जगह से हट जाएगी, तब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मानेंगे कि वर्क इज़ डन, कोई भी काम हुआ. सो वर्क, फार्मूला फॉर वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए मेजरिंग सिस्टम में CGS हमने आपको बताया, CGS, अब यहाँ पर CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट लिखिए आप, F और D मत मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. CGS, FPS,
एंड MKS सिस्टम। CGS सिस्टम में अभी हमने लिखा था वर्क का यूनिट क्या होता है, डायन, दिस इज पाउंडल, एंड दिस इन MKS SI यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड डिस्टेंस के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर होता है CGS में, सेंटीमीटर, हेयर फीट और हेयर मीटर। So what is the formula for work? Work is equal to F into D. In higher classes it will be F into D cos theta. So that is another thing, you have not studied about the trigonometry. So this formula is not included in your syllabus. You have only W is equal to F into D, force into distance. So इसके बाद में यदि वर्क की यूनिट देखें CGS सिस्टम में ERG अर्ग, एंड दिस इज फुट पाउंडल, एंड इन MKS दिस इज जूल। These are the unit of work. Now how you can define one arg? वन अर्ग वर्क को CGS सिस्टम में जो यूनिट है वर्क का, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? उसके लिए तरीका है, वर्क का फार्मूले में फोर्स और डिस्टेंस दो चीज़ें हैं, आप दोनों यूनिट को यहाँ से फोर्स का यूनिट भी 1 कर दीजिए और डिस्टेंस का भी 1 कर दीजिए। सो नाउ वी विल डिफाइन वन अर्ग इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट CGS सिस्टम में डायन, DYNE, 1 डायन कर लीजिए, सब ऑल 3 विल बी यूनिट एंड 1 सेंटीमीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ L। सो वन arg is the work when one dyne force is applied on an object and the object is displaced by 1 centimeter in the direction of applying force। देखिए, in the direction of applying force is essential here। वर्क डन तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ओनली देन वी कैन से दैट वर्क इज डन, एंड देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज D यदि 0 है तो वर्क डन विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट यदि नहीं है तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन नहीं होगा। सपोज दैट यू टेक ए बैग एंड गो टू मार्केट एंड देन अगेन रिटर्न एट योर प्लेस, तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स देयर इज नॉट, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, although you have done so many work, you bought vegetables and many commodities for domestic use and again returned to home, you have wasted your energy, okay, and you have done a lot of work, but in the language of physics your displacement is 0। आप एक बैग लेकर मार्केट जाते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, वापस आ जाते हैं, अपनी जगह पर आ गए, अपने प्लेस पर आ गए और डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो देन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वर्क डन इज 0। कॉमन वे में आपने कितना भी काम किया हो, फिजिक्स की लैंग्वेज में यदि ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन 0। सो अब वन अर्ग को डिफाइन यदि करना है तो फोर्स को भी 1 डायन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को 1 सेंटीमीटर। CGS सिस्टम के तीनों यूनिट, वर्क का भी CGS सिस्टम है, डिस्प्लेसमेंट का भी और फोर्स का भी। तो वन अर्ग वर्क उसे कहेंगे जो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 डायन फोर्स अप्लाई करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, 1 सेंटीमीटर वो अपनी जगह से हट जाती है, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि 1 अर्ग वर्क इज डन if 1 dyne force is applied on an object and it is displaced by 1 centimeter in the direction of applying force, then we can say that 1 arc work is done. Okay, now foot pounder, वन फुट पाउंडर मीन्स यहाँ पर फोर्स का
ये यूनिट ले लीजिए आप जो फोर्स का है, पाउंडर, 1 पाउंडर, और डिस्प्लेसमेंट का 1 फीट, all three will be 1 unit. So 1 foot pounder is work when applied on an object of 1 pound, displace it by 1 feet in the direction of applied force. 1 पाउंडल वर्क उसे कहेंगे, 1 फुट पाउंडल वर्क उसे कहेंगे जो 1 पाउंड की ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद उसमें अप्लाई किए गए फोर्स की डायरेक्शन में 1 फीट का डिस्प्लेसमेंट कर दे, उसको अपनी जगह से अप्लाइंग फोर्स की डायरेक्शन में 1 फीट हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तब 1 फुट पाउंडल वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट इज जूल। 1 जूल, हाउ वी कैन डिफाइन 1 जूल? 1 जूल मीन्स फोर्स का यूनिट लीजिए आप, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है एमकेएस सिस्टम में। दिस इज सीजीएस, हमने डिफाइन किया तीनों को, दिस इज एफपीएस एंड देन एमकेएस। जूल, 1 जूल मीन्स फोर्स का यूनिट लेंगे 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर। 1 जूल वर्क किसे कहेंगे? 1 जूल वर्क होता है यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, उसकी जगह से 1 मीटर फोर्स लगाने की डायरेक्शन में ही हम डिस्प्लेस कर देंगे, तो वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। सो 1 जूल इज द फोर्स व्हेन 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सो वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। 1 जूल समझ में आ गया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे आप और ऑब्जेक्ट 1 मीटर अप्लाइंग फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, तो हम ये कहेंगे कि 1 जूल वर्क हो गया। सो दीज आर 2 यूनिट वी हैव डिस्कस अबाउट फोर्स एंड वर्क। नाउ एनर्जी। The capacity to do work is energy. The capacity to do work is energy. किसी भी काम को करने की कैपेसिटी यू नो, किसी भी काम को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इन जनरल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई, काम करते करते बोलते हैं एनर्जी ख़त्म हो गई, मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क इज एंड। या हम व्हेन वी आर फीलिंग फैटिक, थकान महसूस करते हैं, इट मीन्स हम बोलते हैं एनर्जी डाउन हो गई, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क हमारी कम हो जाती है उस स्थिति में व्हेन वी फील फैटिक। आपको जो सिलेबस में है वो एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है, देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, और भी हाइडल, थर्मल, बहुत कई, देयर आर सो मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक पर मेन जो 2 टाइप है जो आपके सिलेबस में है वो दे आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनी ऑब्जेक्ट हैव 2 कंडीशन। एक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 कंडीशन होगी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। Either the object that you are seeing will be in dynamic position or in
static condition. Suppose that a ball is rolling on the floor, so it is dynamic condition, and it is placed at one place, then this is static condition of the ball. बॉल एक जगह पर रखी है तो वो उसकी static condition है. यदि वो लुढ़कती है फर्श पर तो देन दिस इज डायनेमिक कंडीशन ऑफ द बॉल. सो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं हम स्थिर है वो, और ये गतिशील अवस्था, डायनेमिक पोजीशन, चलती हुई, और एक फिक्स है. ठीक है, तो एनर्जी possessed by an object in static condition is known as potential energy. एनर्जी, ऑब्जेक्ट की एनर्जी स्टैटिक कंडीशन में भी होती है और डायनेमिक कंडीशन में भी उसमें एनर्जी होती है. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी उसमें स्टैटिक कंडीशन में होगी वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और डायनेमिक कंडीशन में होगी वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी. स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक कंडीशन में जो होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और डायनेमिक कंडीशन में होगी वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी. ये इसका डायनेमिक कंडीशन से मतलब होता है. गतिशील अवस्था में जो एनर्जी प्रदेश करती है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके पास होती है जो एनर्जी, वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी. और स्टैटिक कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो, स्थिर अवस्था में जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, गतिशील अवस्था में या डायनेमिक कंडीशन में होगी वो काइनेटिक एनर्जी. देयर आर टू फार्मूला फॉर दिस एनर्जी. हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv² and this is m into g into h, mgh. Here what is g? We will discuss about small g and capital G also and a. इनमें दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, तो हाफ mv², m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. क्योंकि डायनेमिक कंडीशन में होती है, गतिशील अवस्था में होती है काइनेटिक एनर्जी, सो द ऑब्जेक्ट हैज सम वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज v here. Half mv² is formula for kinetic energy and mgh is formula for potential energy. Okay, actually small g, what is small g? M is mass, h is height, and what is small g? This is actually a or g, both are, this is acceleration and small g is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration means change of rate of velocity. तो चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण भी होता है, इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यदि आप कोई स्टोन को एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग से फेंकेंगे नीचे, तो अर्थ के अट्रैक्शन पावर के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा. ओके, जैसे जैसे अर्थ के करीब आएगा उसकी स्पीड, उसके ऊपर एक्सेलरेशन फोर्स जो है वो, ग्रेविटी फोर्स जो है अर्थ का, वो बढ़ते जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा. तो वहाँ हमने जो स्मॉल जी लिया है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आइदर यू आर थ्रोइंग ए स्टोन डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में क्या होगा? स्पीड जैसे जैसे अर्थ के करीब आएगा स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा. वो एक्सेलरेशन या जी जो है ऐसी कंडीशन में ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो वो पॉजिटिव होगा. इफ़ यू आर थ्रोइंग ए स्टोन अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ऊपर की तरफ फेंकने में जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी ग्रेविटी कम होगी, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी टेकन एज माइनस. ये आप ध्यान रखो. साथ में इनके दो नाम भी हैं. जब पॉजिटिव होगा तो ओनली एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है. पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन कहेंगे. बट सपोज दैट यू आर एक्सेलरेटेड कार, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये वाला होगा. ब्रेक, इफ़ यू आर अप्लाइंग ब्रेक तो ये वाला हो जाएगा. ब्रेक अप्लाई करेंगे, स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा. तो जो माइनस वाला एक्सेलरेशन होता है इसे एक्सेलरेशन नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. एक वर्ड है फिजिक्स में, रिटार्डेशन. और दिस इज पॉजिटिव वाला एक्सेलरेशन.
ठीक है। तो ये स्मॉल जी जो है ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं इसको, जी एम जी एट मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज क्लियर नाउ, एनर्जी इज क्लियर। अबाउट इट्स यूनिट, यदि देखिए व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, आपके काम करने की टोटल जो क्षमता है उसे हम एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी की यूनिट भी वही होंगे जो वर्क के हैं, बिकॉज वर्क का ही तो रिजल्ट है। कैपेसिटी टू डू वर्क यूनिट अलग से नहीं होते, CGS, FPS, MKS में वही यूनिट होंगे, अर्क, फुट पाउंडल और जूल, जो वर्क के रहेंगे वो ही यूनिट एनर्जी के रहेंगे, ठीक है। नाउ अनदर यूनिट इज पावर। Actually power is rate of doing work, rate of doing work means यूनिट टाइम में आप जितना काम करेंगे उसे कहेंगे पावर। यूनिट टाइम में किया गया काम क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। पावर के यदि यूनिट निकालें हम, वैसे पावर के यूनिट अलग है, CGS, FPS से नहीं, हार्स पावर, वाट, किलोवाट ये, और किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये इसके यूनिट होते हैं। और इसका फार्मूला वर्क अपॉन टी, एक यूज़ होता है इसका। वर्क को यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, F इंटू डी अपॉन टी। ये हमने F इंटू डी की किसकी प्लेस पर लिखा, वर्क की जगह पर। अब देखो एक फार्मूले से और नए फार्मूले कैसे बनते हैं, वर्क की जगह पर हमने F इंटू डी लिखा अपॉन टी। F के प्लेस पर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, वी कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन इन प्लेस ऑफ फोर्स ma इंटू, अब क्या हो गया, ये फोर्स के प्लेस पर हमने लिखा m इंटू ए, और d है और आगे ये t, ये आगे और फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसका एक यूज़ होता है कि P इज इक्वल टू W अपॉन टी। यदि दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, इसका मतलब होता है P इज प्रोपोर्शनल टू W एंड P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है, P, W एंड T एक दूसरे पर डिपेंड है क्वांटिटी, ठीक है। न्यूमरेटर जो है ये प्रोपोर्शनल होगा, डिनोमिनेटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि टी की वैल्यू बढ़ाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है दो क्वांटिटी में से, टू क्वांटिटी में से जो विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, यदि एक को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, या पहली वाली को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज होगी। अपोजिट एक्शन होंगे वहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, और एक जैसे होंगे एक को बढ़ाने पर उससे रिलेटेड क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे हम प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। दोनों क्वांटिटी यदि एक जैसा प्रभाव पड़ता है उन पर, एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाती है तो वो प्रपोर्शन। एक को बढ़ाने पर दूसरी घटती है, एक को घटाने पर दूसरी, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो P जो होता है ये T के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मतलब T यदि ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। T की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगी, ठीक है। हिली एरिया में या कुछ एरिया में रोड जो बनाए जाते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि उनको पार करने में टाइम ज़्यादा लग जाए। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो P की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी, कम पावर लगेगी। हाँ टाइम ज़रूर, वो टाइम तो लगेगा क्योंकि T को बढ़ाने के लिए ही उसको इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है।
और भी है, एनवायरमेंटल रीज़न भी है उसके हालांकि, पर फिजिक्स के उसमें सिर्फ टी को बढ़ाने के लिए चूँकि पावर कम लगे, कम पावर में भी काम चल जाए, इसलिए उनको घुमावदार और लंबे लंबे बना दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पार करने में टी ज़्यादा लगने लगता है तो पी कम हो जाती है. Now in our next video we will discuss about some other chapter and will forwarded you. You have to see this video again and again and write this chart which we have already prepared or we have already wrote in the chart and learn them. Thank you.